أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ جل شانہ کی ذات کے لیے ہیں. وہ اللہ جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، بگڑیاں بنانے والا ہے، موت و حیات کا مالک ہے، علی کل شیء قدیر ہے. بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام مجتبی، امام الرسل، خاتم الانبیاء، آقائے دو جہاں، کائنات کے سردار نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے. صاحب اور ساتھیوں، قابل احترام تشریف فرما ماں اور بہنوں، اللہ مالک العالم کا بے حد احسان ہے کہ جس مالک نے ہمیں اپنے گھر آنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمارے اوپر جو حقوق ہیں، جمعے کے ہمارے اوپر جو حقوق ہیں، رب العالمین کے ہمارے اوپر جو حقوق ہیں، اور بندوں کے ہمارے اوپر جو حقوق ہیں، رب العالمین ہم سب کو ان تمام حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربیع الاول کا مہینہ جاری اور ساری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے اور آپ کے لیے بہترین آئیڈیل، بہترین رہبر اور بہترین نمونہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ جب اس دنیا پر گمراہی کے علاوہ، ظلم کے علاوہ، ستم کے علاوہ کچھ نہیں تھا، لوگ گمراہ ہو چکے تھے اور گمراہیوں کے اندھیروں میں، گمراہیوں کی دلدل میں گر چکے تھے، پھنس چکے تھے، تو رب العالمین نے میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نازل کیا، آپ کو مبعوث کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آئیڈیل ہیں، ہمارے رہبر ہیں، ہمارے رہنما ہیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت والی زبان سے یہ اعلان کیا تھا کہ اللہ نے مجھے تمہارے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے اور میرے ذریعے اللہ نے تم لوگوں کو ہدایت عطا فرمائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے حوالے سے، آپ کی صفات کے حوالے سے، آپ کی ذات کے حوالے سے، اور آپ کے اخلاق، آپ کے کردار، آپ کے اعمال کے حوالے سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کس انداز میں، یہ ساری باتیں انشاءاللہ ہم سنیں گے. آج اپنے علم میں اضافہ کریں گے. باتیں تو پہلے بھی ہم نے بہت ساری سنی ہیں. محبت کے حوالے سے صحابہ اکرام کی زندگیاں ہم نے پڑھی ہیں، سنی ہیں، پرکھی ہیں، اور اب کسی بات کا کوئی شک نہیں رہ گیا کہ صحابہ اکرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کس انداز میں محبت کرتے تھے اور کتنی محبت کرتے تھے. جس نبی سے میں نے اور آپ نے اسلام کا، دین کا اور محبت کا رشتہ جوڑا ہے، آج اس نبی کے بارے میں بات چیت کریں گے. جس نبی کی اطاعت کا قرآن نے، رب رحمان نے اطاعت کا حکم دیا ہے، آج اس نبی کی بات کریں گے. جس نبی کی فرما برداری کرنے کا رب رحمان نے حکم دیا ہے، جس کی تابع داری میں اپنی زندگی کو لٹانے کا رب نے حکم دیا ہے، جس کی اطاعت میں سب کچھ نشاور کرنے کا رب نے حکم دیا ہے، اور جس کی اتباع اور فرما برداری میں رہتے ہوئے زندگی کو گزارنے کا رب نے حکم دیا ہے. اور کل قیامت کو انشاءاللہ 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 ثم انشاءاللہ رب العالمین اپنے خاص فضل و کرم سے، اپنی خاص رحمت سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرچم کے نیچے، علم کے نیچے جمع کرے گا. اگر اس پرچم کے نیچے، اس علم کے نیچے جمع ہونا ہے تو یہ سارے کام کرنے پڑیں گے. اتباع بھی کرنی پڑے گی، فرما برداری بھی کرنی پڑے گی، تابع داری بھی کرنی پڑے گی، اور محبت بھی ویسے کرنی پڑے گی جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی ہے اور جس طرح نبی علیہ السلام کے صحابہ نے کی ہے. وگرنہ یہ 4-5 باتیں، اتباع ہے، فرما برداری ہے، محبت ویسے کرنی ہے جس طرح صحابہ نے کی، اگر میرا اور آپ کا صحابہ سے راستہ الگ ہو گیا تو انجام بالکل اس کے برعکس ہے. انجام بالکل اس کے برعکس ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کے حوالے سے انشاءاللہ آج ہم بات سنیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے. کس کی نسل میں سے؟ ابراہیم علیہ السلام. اسی لیے ان کو جد الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو.
دوسری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ ہے کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کے بھیجا. سب کے بعد آئے ہیں لیکن مرتبہ، مقام، بلندی، شان اور فائز رب نے تمام انبیاء سے زیادہ عطا کیا. آپ کو امام الانبیاء کا شرف رب نے عطا کیا. آپ کو معراج جیسی عظیم نعمت سے رب نے نوازا. رب العالمین نے بہت سارے انعامات کیے، ان سارے انعامات سے ایک انعام معراج بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو اگر دیکھیں نا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کو دیکھیں، آپ کے حسب و نسب کو دیکھیں، سب سے اعلیٰ. نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ کنانہ، اللہ احکم الحاکمین نے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے کنانہ کو چنا. واصطفیٰ قریش من کنانہ، اور قریش سے کنانہ کو چنا. واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم، اور قریش سے رب العالمین نے بنو ہاشم کو چنا. واصطفانی من بنی ہاشم، اور بنو ہاشم میں سے رب نے کسے چنا؟ مجھے چنا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلیٰ نسب والے ہیں. اعلیٰ نسب والا رب نے ہمیں نبی دیا ہے. کوئی عام بات نہیں ہے، کوئی سادہ بات نہیں ہے. اللہ احکم الحاکمین نے جس نبی کا مجھے اور آپ کو امتی بنایا ہے، وہ نبی بذات خود ہی اعلیٰ نہیں بلکہ اللہ نے ان کا حسب و نسب بھی اعلیٰ بنایا. دوسری بات، رب العالمین نے میرے اور آپ کے اوپر، بلکہ جب سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہوئی ہے، قیامت کی دیواروں تک کا یہ اعلان ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ رب العالمین نے اے لوگوں تمہارے اوپر بہت بڑا احسان کیا. ایک رب کا احسان ہے کہ رب نے مجھے 2 ہاتھ دیے ہیں، مجھے 2 آنکھیں عطا کی ہیں، مجھے بولنے کے لیے زبان عطا کی ہے، مجھے چلنے کے لیے 2 پاؤں عطا کیے ہیں، سننے کے لیے مجھے 2 کان عطا کیے ہیں، دھڑکنے کے لیے میرے سینے کے اندر رب نے دل رکھا ہے، اور مجھے پیٹ لگایا ہے، مجھے منہ لگایا ہے، مجھے دماغ دیا ہے، میرے پورے وجود کو بنایا ہے. یہ بھی رب کے انعام ہیں، یہ بھی رب کے احسان ہیں. آج ہمیں ہماری اس باڈی کو ہم دیکھتے ہیں نا تو قدر نہیں کرتے. جس کے ہاتھ نہیں ہے جا کے اس سے پوچھیں، جس کی آنکھیں نہیں ہے اس سے پوچھیں، جس کو رب نے کان تو دیے ہیں لیکن سننے کی سماعت نہیں ہے اس سے پوچھیں، جس کو رب نے پاؤں تو دیے ہیں لیکن لاغر ہے، چل نہیں سکتا، قدر و قیمت اس سے جا کے پوچھیں. یہ رب کے احسان ہیں. رب نے ہمیں اچھی بیویاں عطا کر دی، رب نے ہمیں خوبصورت اولادیں عطا کر دی، رب نے ہمیں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کر دیا، رب نے ہمیں قرآن سے جوڑ دیا، رب نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا، رب نے ہمیں اپنے گھروں کے ساتھ مساجد کے ساتھ جوڑ دیا، رب نے ہمیں دین کو پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے والوں کے ساتھ جوڑ دیا. یہ رب کے سارے انعامات ہیں. رب نے ہمیں بھکاری نہیں بنایا، رب نے ہمیں کسی ہندو کے گھر پیدا نہیں کیا، رب نے ہمیں کسی مجوسی کے گھر پیدا نہیں کیا، کسی آگ کے پجاری کے گھر پیدا نہیں کیا. یہ سارے رب کے احسان ہیں، سارے رب کے انعام ہیں، یہ سارے کے سارے میرے رب کے فضل ہیں. حضرات ان سارے انعامات، احسانات اور رب کے سارے فضلوں کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں. سب سے بڑا فضل یہ ہے کہ رب نے مجھے اور آپ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. لقد من اللہ علی المؤمنین، رب العالمین کہتے ہیں لوگوں ہم نے تمہارے اوپر احسان کیا. احسان، اور احسان بھی کون سا؟ احسان عظیم. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. وہ میرا نبی تمہارے پاس آیا، تمہیں کتاب و حکمت کا اس نے درس دیا، تمہیں تزکیہ نفس کے طریقے بتائے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے ذرا اپنے گریبان میں جان کے دیکھو تم کیسے تھے، گمراہی کے اندر تھے. کیسی گمراہیاں تھیں نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے؟ بیوی کو بیوی کا حق نہیں دیا جاتا تھا، ماں کو ماں نہیں سمجھا جاتا تھا، باپ کو باپ نہیں سمجھا جاتا تھا، بہن بھائیوں کا حق نہیں ادا کیا جاتا تھا، رشتہ داروں کے حقوق کا خیال نہیں کیا جاتا تھا. آج دین اسلام، اللہ کرے نفاذ اسلام کا آ جائے، دین اسلام کا نفاذ آنے کے بعد شریعت نے ہمیں کہا ہے اگر خدا نخواستہ ایک بندہ کسی دوسرے قبیلے کے بندے کو قتل کر دیتا ہے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا. گمراہی کس قدر تھی کہ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے فرد کو قتل کرتا، اٹھ کے یہ قبیلہ پورے کے پورے قبیلے کو تباہ و برباد کر دیتا. گمراہی تھی کہ نہیں؟ گمراہی اس قدر تھی. آج عورتیں کہتی ہیں ہمیں ہمارے حق نہیں ملے، ہمیں ہمارے حقوق نہیں ملے. حقوق نسواں اور آزادی مارچ کے نام سے یہ روڈ بلاک کر کے شریعت کا مذاق اڑانے والی، دین اسلام کا مذاق اڑانے والی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت والی زندگی کا مذاق اڑانے والی، قرآن کا مذاق اڑانے والی، آج اس عورت کی عقل پر پردہ ہے.
उफ है इसकी अकल पर, जो आज ये रोड पर निकल के अपने नंगे बदन को लोगों के सामने, मीडिया के सामने लाके ये बावर करवाना चाहती है मेरा खामद मुझे मेरा हक नहीं देता, मेरा भाई मुझे मेरा हक नहीं देता, मेरे बाप ने मुझे मेरा हक नहीं दिया। इसको पता ही कुछ नहीं है, इसको पता ही नहीं है। तारीख कभी पढ़ी हो तो बताओ ना, हमें तो ड्रामों से, फिल्मों से, और जहां से निकलेंगे तो डाइजेस्ट, यहां से निकलेंगे मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक, यहां से फुर्सत मिले तो हम कुछ पढ़े ना। हजरात कैसी गुमराही थी, जमाना जाहिलियत है। आका अलैहिस्सलाम की बेइज्जत से पहले की बात, नबी अलैहिस्सलाम पर जो कुरान उतरा, रब ने ऐलान किया व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन, लोगों मेरे नबी के आने से पहले तुम गुमराही के अंदर थे। कैसी गुमराही? हजरात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है या आदम अलैहिस्सलाम की जितनी भी बेटियां हैं, क़यामत तक आने वाली की बात है, आदम अलैहिस्सलाम की जितनी भी बेटियां हैं, अम्मा हवा की जितनी भी बेटियां हैं, उनको रब्बुल आलमीन ने हर महीने के अंदर चंद दिनों की छुट्टी दी होती। वयसअलूनका अनिल महीज़ कुल हुवा अज़न फ़अतज़िलुन निसाअ फ़िल महीज़ वला तक़रबूहुन्ना हत्ता यतहुरना, जिसके मतलब कुरान ने फरमाया कि जब वो अय्याम चल रहे हों, मर्दों को, खामदों को हुक्म दे दिया कि तुम इनके करीब न जाना। करीब जाने से मुराद गहराई वाली बात, पर्दे वाली बात, बाकी बातचीत कर सकते हैं, इकट्ठे खा पी सकते हैं, इकट्ठे शॉपिंग के लिए जा सकते हैं, हाँ जो तन्हाई वाला मामला वो नहीं करना। जमाना जाहिलियत है। औरत के साथ जब रब का ये कानून होता, जब एक औरत को रब ये चंद दिनों की छुट्टी देता, ये जमाना जाहिलियत वाले लोग क्या करते, उस औरत को एक दूर दराज बंद कमरे में जाके बंद करके आ जाते, इससे हम कलाम होना बंद कर देते, बातचीत करना बंद कर देते, और इससे इसके हाथ का खाना पीना तर्क कर देते। और इसको जब खाना देने के लिए जाते हैं ना, कभी हमने तारीख पढ़ी हो तो पता चले कि जमाना जाहिलियत किस तरह का था, कभी तारीख पढ़े तो पता चले ना। जब इसको खाना देने के लिए जाते तो ऐसे इसके सामने जाके खाना फेंकते जैसे किसी कुत्ते या जानवर के सामने फेंकते। इस्लाम आया तो इस्लाम ने आके इस औरत के सर पे हाथ रख दिया, इसके नंगे सर को ढांप दिया, इसकी रुलती हुई इज्जत को उसने इकट्ठा कर लिया, समेट लिया उसको, इस औरत को इज्जत अता कर दी। फरमाया हाँ जब ये दिन आए रब की तरफ से हैं, तुम नमाज नहीं पढ़ोगी, तुम रोजा नहीं रखोगी, लेकिन खामद के जो हकूक हैं, जो पोशीदा हैं, उसके अलावा बाकी सारे मामलात होंगे। तुम आटा भी गूंथ सकती हो, तुम सालन भी बना सकती हो, तुम सारे घर के काम काज कर सकती हो, अपने खामद के साथ बैठ भी सकती हो, लेट भी सकती हो, तन्हाई वाला मामला नहीं करना, बाकी उसके अलावा दीगर सारे मामला कर सकती हो। क्यों जी? इस्लाम ने आगे हक दिया या हक छीन लिया? इस्लाम से कबल व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन के तहत इसके पेश नजर इसकी तफसीर को पढ़ें कि लोग खुली गुमराही में थे। बच्चियों को जिंदा दरगोर करने वाला मामला था। लोग जिसके घर में बच्ची पैदा हो जाती उसको बड़ा ऐबदार समझते, ऐबदार निगाहों से उसको देखते। और एक झंझोड़ने वाली बात और बता दूं, आज अल्लाह हम सब की माओं को सलामत रखे, उनके साए हमारे सरों पर सलामत रखे, उनकी दुआएं हमारे लिए सलामत रखे, और जिनकी माएँ जा चुकी हैं अल्लाह ताला उनको गरीके रहमत करे, जन्नतों में अल्लाह ताला उनको घर अता करे। हजरात ज़माना जाहिलियत में होता ये था कि अगर बाप फौत हो गया ना, तो जो है ना, अगर बाप फौत हो गया तो विरासत किसके हक में आएगी? औलाद के हक में ना। बाप के मर जाने के बाद विरासत औलाद के अंदर तकसीम होगी। अगर इनकी माँ मौजूद है, माँ को भी हिस्सा मिलेगा, औलाद मौजूद है, औलाद को भी हिस्सा मिलेगा। होता ये था ज़माना जाहिलियत में कि जब घर का बाप फौत हो जाता, घर का सबसे बड़ा बेटा अपनी माँ से निकाह कर लेता। अस्तगफिरुल्लाह। आज ये औरत कहती है मुझे हकूक नहीं मिले, डूब के मर जाता हूं। शर्म नहीं आती? रब के कुरान की तौहीन कर रही हो। व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन, रब ने एहसान किया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल और सूरत में। वो आए, रब ने गुमराहियों के पर्दे दूर करके हिदायत की रोशनियां तुम्हारे लिए खोल दी। घर का बड़ा बेटा सिर्फ और सिर्फ विरासत पर अपना कब्जा जमाने के लिए बाप के मर जाने के बाद अपनी मां से शादी कर लेता। क्यों जी? हमारे इस्लाम के अंदर ये जायज है? नहीं, किसी सूरत नहीं। हाँ, हमारे इस्लाम के अंदर कुछ अमल ऐसे हैं, कुछ अमल ऐसे हैं कि अगर इंसान वो अमल करता है तो प्यारे पैगंबर ने फरमाया ये ऐसे ही है जैसे इसने अपनी माँ से पता नहीं कितनी मरतबा जिना किया। कौन सा अमल है पता है? सूद खाने वाला और खिलाने वाला, सूदी कारोबार करने वाला और करवाने वाला। कितनी मरतबा?
70 मरतबा। जो सूद का कारोबार करने वाला है, सूद का लेन देन करने वाला है, वो ऐसे ही है जैसे 70 मरतबा से अपनी माँ से जिना किया है। और याद रखें, जब तक ये कारोबार करता रहेगा ये गुनाह मुसलसल लिखा जा रहा है, लिखा जा रहा है, लिखा जा रहा है, जब तक ये अपने इस अमल से रुक नहीं जाता, बाज नहीं आ जाता, तौबा नहीं कर लेता। अल्लाह ने समझने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत रब्बुल आलमीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत के बाद गुमराहियों को दूर कर दिया, ज़लालत के जो अंधेरे थे, जुल्मात को खत्म कर दिया, लोगों पर हिदायत की रोशनी को रब ने निशावर करना शुरू कर दिया। तभी तो रब ने फरमाया वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बुल आलमीन ने रोशन चिराग बना के भेजा। जिस तरह एक इंसान चिराग जलाता है ना तो रोशनी हो जाती है और अंधेरे खत्म हो जाते हैं, उसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बुल आलमीन ने रोशन चिराग बना के भेजा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, कुफर के अंधेरे, शिरक के अंधेरे रब ने खत्म कर दिए। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको गवाहियां देने वाला बना के भेजा, और हमने आपको खुशखबरियां सुनाने वाला भेजा, और हमने आपको डराने वाला भेजा। आपको डराने वाला बना के, खुशखबरियां सुनाने वाला बना के, आपको गवाह बना के, और इसके साथ साथ हमने आपको दाई, दावत देने वाला, किसकी तरफ? बदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा, अल्लाह ताला के हुक्म से अल्लाह ताला की तरफ दावत देने वाला हमने आपको बना के भेजा, और रोशन चिराग बना के भेजा। अल्लाह हमें इस रोशन चिराग की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। हम तो छोटी छोटी बातों के पीछे लगे होते हैं, और उसी पर तू बाबी, मैं बरेलवी, मैं बरेलवी, तो देवबंदी, तो देवबंदी, मैं फलाना, मैं फलाना, तो बस इससे हम बाहर नहीं निकले आज तक। आज उम्मत वाहिद बनने की जरूरत है, एक उम्मत बनने की जरूरत है। बड़ी एक दूसरे की टांगे खींच ली हमने, एक दूसरे को बड़े बुरे बुरे अलकाबात से नवाज लिया, एक दूसरे की मस्जिद में नहीं जाना, तेरी उनके पीछे नहीं, मेरी उनके पीछे नहीं, उनकी मेरे पीछे नहीं, तो तेरी मेरे पीछे नहीं, ये फतवे हमने बड़े लगा लिए। नुकसान किसका हुआ है? ये फतवे लगा के वाबियां दी देवबंदियां पीछे नहीं, वाबियां दी बरेलवियां पीछे नहीं, बरेलवियां दी देवबंदियां पीछे नहीं, होना पीछे नहीं, नुकसान किसका हुआ है? मिसाल है, मैं एक जर्नल स्टोर बनाता हूं, मैं या तो अदलियो कोई बना सकता है, मेरे तो सारे वेखन कारी जर्नल स्टोर बनाए हुए, आप कोई जर्नल स्टोर बना लेते हैं। आप जरा अपने दिल पे हाथ रख के दुआई दीजिएगा और मेरी हाँ में हाँ मिलाइएगा, ताकि बात को जल्दी खत्म करके अगली बात को सुने। आप अपनी दुकान के बाद, आप अपने जनरल स्टोर के बाहर ये लिखेंगे कि यहाँ पे सिर्फ देवबंदी आएंगे, बरेलियों को, वहाबियों को सामान नहीं मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ बरेलवी हजरात आएंगे, वहाबियों को, देवबंदियों को, शिया सुन्नियों को सामान नहीं मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ वहाबियों को सामान मिलेगा, बाकी किसी भी फिरके वाले को सामान नहीं मिलेगा। क्यों जी? ईमान से गवाही दीजिएगा, रब को हाजिर नाज़िर जान के। हम ऐसा कर सकते हैं? अपने पैरों पे कुहाड़ियां सियाह मारांगे, सानू अकलमंद कोई नहीं कहेगा, उल्लू का पट्ठा कहेगा देखने वाला, और कहेगा कितना ये अकल का अंधा इंसान है। एक तरफ इसने कारोबार शुरू किया है, दूसरी तरफ इसने कैद लगा दी कि ये ना आए, वो ना आए, वो ना आए, बस एक ही बंदा है, एक ही फिरके का बंदा है। क्यों जी? हम अपना कारोबार ऐसे करते हैं, तो फिर ऐसी मस्जिद से कैद क्यों लाई थी? जब मेरा कारोबार बर्बाद होता है तो मुझे फिक्र लाहिक हो जाती है, मेरी सोच मुझे उकसाती है कि यार नहीं, ऐसा ना करना, बाहर ना लिखना कि ये सिर्फ वहाबियों के लिए है, ये सिर्फ देवबंदियों के लिए है, ये सिर्फ बरेलियों के लिए है, ये सिर्फ शिया सुन्नी के लिए है। ना लिखना, तुम्हारा कारोबार तबाह हो जाएगा। जो तुमने इतना पैसा रुपया खर्च किया, बेड़ा गर्क हो जाएगा। दीन का बेड़ा गर्क होता है, उसकी हमें कोई परवाह नहीं। रब की मस्जिदें वीरान हो गई, उसकी हमें कोई परवाह नहीं। अपने कारोबार की परवाह है, हमें लालच है तो बस अपनी, नहीं फिक्र की तो अपने दीन की फिक्र नहीं की। हज़रात, अगली बात सुने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बुल आलमीन ने मेरे और आपके लिए, बल्कि इस पूरी कायनात के लिए मुशफिक और मेहरबान बना के भेजा। मुशफिक और मेहरबान बना के भेजा। आप कितने नरम दिल हैं, आप कितने शफीक हैं, आप कितने इस उम्मत के बारे में फिक्रमंद हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान ने ऐलान किया, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। मेरा नबी तुम्हारे बारे में बड़ा हरीस है, बहुत हरीस है, तुम्हारे बारे में बड़ी फिक्र रखता है। कितनी फिक्र है? सारी सारी रात मुसल्ले पे रो रो के गुजार दी इस उम्मत के हक में। इतना क़याम, इतना इतना लंबा क़याम। अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि मैंने एक दिन पूछ ही लिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इतनी मुशक्कत क्यों करते हैं? आपको रब्बुल आलमीन ने मासूम बना के भेजा है, आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं?
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया था? ऐशा, जिस रब ने मुझे मासूम बना के भेजा है, अफला अकून अब्दन शकूरा, क्या मैं अपने उस रब का शुक्रगुजार बंदा ना बन जाऊं? उस रब का शुक्र अदा करने के लिए मैं सारी सारी रात मुसल्ले पे गुजारता हूं। इस उम्मत के गम में, इस उम्मत की फिक्र में, इस उम्मत के दर्द में आज इस उम्मत को सिर्फ मोहब्बत नजर आती है तो सिर्फ झंडियां लगाने में, ढोल की थाप पे ठुमके लगाने में, हलवे खाने में और बिरयानियां खाने में और एक दूसरे को खाने खिलाने में, बस यही मोहब्बत है। इंशाल्लाह अगले जुमे तफसील से सारी बात करेंगे। आज फिलहाल नबी अलैहि सलाम के स्टार्टिंग से जिंदगी की बात कर रहे हैं कि रब्बुल आलमीन ने मेरे और आपके लिए नबी अलैहि सलाम को क्या कुछ बना के भेजा और हमने क्या कुछ बना दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी आयत के अंदर, कुरान मजीद के अंदर रब्बुल आलमीन ऐलान करते हैं, कुल ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ऐलान कर दें, इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ऐलान कर दें कि मैं भी तुम्हारे जैसा बशर हूँ। अच्छा, जिसका कुरान पर यकीन नहीं, क्या वो बंदा मुसलमान हो सकता है? जिसका कुरान की आयत पर ईमान नहीं, क्या वो बंदा मोमिन हो सकता है? जवाब दें, नहीं हो सकता। जिस बंदे का कुरान पर शक है, जो बंदा कुरान की बात को मानने के लिए तैयार नहीं, आज हम अभी तक इस लड़ाई से नहीं निकले, नबी नूर है, नबी बशर है, नबी हैं या नहीं है? क्यों जी? हैं या नहीं है? बशर हैं, नूर हैं? इस लड़ाई से आज तक हम निकले ही नहीं। कुरान की आयत झूठ बोल रही है, नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। रब का ऐलान है, रब का ऐलान है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम व इलाहुम वाहिद। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ऐलान कर दें, मैं भी तुम्हारे जैसा बशर हूं। फर्क क्या है? यूहा इलैया, मेरी तरफ रब वही करता है, तुम्हारी तरफ वही नहीं होती। मेरा भी इलाह वो है, तुम्हारा भी इलाह वो है। हदीस सुना के अपनी बात को मजीद नखेर देता हूँ, रोशन कर देता हूँ। नबी अलैहिस्सलाम ने जोर की नमाज पढ़ाई। जोर की नमाज की कितनी रखते हैं फर्ज? सारे बोलो, जिन्होंने जमात ना पढ़नी होती है उनको तो पता होगा कितने ने? 4। अल्लाह हम सबको बाद जमात पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। नबी अलैहिस्सलाम ने कितनी रखते पढ़ाई? 2। फर्ज कितने हैं? 4। फर्ज कितने हैं? 4। नबी अलैहिस्सलाम ने कितनी पढ़ाई? 2। मेरी बात के साथ चलें, आपने कितनी पढ़ाई? 2 पढ़ा के आपने सलाम फेर दिया। जोहर के फर्ज तो 4 है ना, आपने 2 रकत पढ़ाई। ये भाई से कहें थोड़ी देर ब्रेक लगा दो माजरत के साथ। नबी अलैहिस्सलाम ने, हालांकि पहले आप 4 पढ़ाते थे, लेकिन उस दिन आपने 2 पढ़ाई और 2 पढ़ा के आपने सलाम फेर दिया। और सलाम फेरने के बाद जब आप सहाबाए किराम की तरफ अपने चेहरे अनवर को फेर के बैठे, आपको कुछ काम याद आ गया, आप उठे और अपने घर में चले गए। सहाबाए किराम नबी अलैहिस्सलाम के जाने के बाद आपस में बातचीत कर रहे हैं, अकुसिरत सलातु अम नसिया, नमाज कम हो गई है या आप भूल गए? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकत पढ़ाई है, सलाम फेर दिया है। सहाबाए किराम आपके जाने के बाद आपस में बैठ के बात कर रहे हैं, नमाज कम हो गई है या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूल गए? अब किसी सहाबी के अंदर, किसी शागिर्द के अंदर इतनी जुर्रत नहीं है कि जाके नबी अलैहिस्सलाम से सवाल ही कर ले। आपस में बैठे बातचीत हो रही है। एक सहाबी है जिनको सहाबा ज़ुल्यदैन के नाम से याद करते हैं, वो जरा हिम्मत करके उठे, कहते मैं जाता हूँ, जाके मैं नबी अलैहिस्सलाम से पूछता हूँ। दरवाजा खटखटाया गया, नबी अलैहिस्सलाम बाहर आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अकुसिरत सलाह अम नसिया, नमाज कम हो गई या आप भूल गए? आपने फरमाया ना नमाज कम हो गई है ना मैं भूला। आपको यही था कि मैंने कितनी रकत पढ़ाई है? 4, लेकिन दर हकीकत पढ़ाई कितनी है? 2। नबी अलैहिस्सलाम ने जब ये जवाब दिया तो ज़ुल्यदैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दोनों कामों में से फिर एक काम तो हो गया। अगर नमाज कम नहीं हुई तो फिर आप भूल गए। नबी अलैहिस्सलाम ने वहां पे लड़ाई नहीं की, वहां पे कोई तानो तशनी नहीं की, वहां पे ईगो पे बात नहीं आई कि मेरा शागिर्द हो के, मेरा सहाबी हो के मेरी गलतियां नहीं कर रहे हैं। नहीं, नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद में आए, सहाबाए किराम से पूछा मैंने कितनी रकत पढ़ाई है? सहाबा कहते हैं अल्लाह के नबी साहब आपने 2 रकत पढ़ाई है। आका अलैहिस्सलाम मुसल्ले पे आए, आपने 2 रकत फिर पढ़ाई, तशहुद किया, सलाम फेरने से पहले नबी अलैहिस्सलाम ने 2 सजदा साहब किए, सलाम फेर के नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा की तरफ चेहरा किया और फरमाया इन्नमा, जिन्हों नबी की जुबान से भी यकीन नहीं ना, वो अपने ईमान का मुहासबा कर ले। जिन्हों कुरान से भी यकीन नहीं, अपना मुहासबा कर ले। इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम अनसा कमा तनसौना, मैं भी तुम्हारे जैसा इंसान हूं, जिस तरह तुम भूल जाते हो मैं भी भूल गया। अल्लाह ने नबी अलैहिस्सलाम को भुला के हमारे लिए यहाँ पे जो एक रुखसत पैदा की, वो क्या है कि अगर नमाज का कोई रुकन रह जाता है, नमाज का कोई रुकन गलती से रह जाता है, तशहुद पढ़ के
सलाम फेरने से पहले 2 सजदे करके उसके बाद सलाम फेरना है। तुम्हारा जो रुकन रह गया है अल्लाह उसकी कमी को इन 2 सजदों की करने की वजह से पूरा कर देगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे ऊपर कितने मुशफिक हैं, कितने मेहरबान हैं। 3-4 हदीसें हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आका फरमाते हैं मेरा दिल करता है कि मैं इशा की नमाज लेट से पढ़ाऊं, लेकिन जब उन औरतों की तरफ मेरी तवज्जो जाती है ना कि जिनकी गोदों के अंदर छोटे छोटे बच्चे होते हैं और वो भूख की वजह से रोते हैं, बिलबिलाते हैं, उनके रोने की आवाज़ जब मुझ तक आती है तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी उम्मत पर मुशक्कत है, तो मैं इशा की नमाज को जल्दी और हल्का पढ़ा देता हूँ। नबी इस्लाम मुशफिक है कि नहीं, फिर मेहरबान है कि नहीं। आका इस्लाम ने फरमाया अस्सिवाक मितहरतुल लिलफम व मरज़ातुल लिर्रब, मिसवाक किया करो, तुम्हारे मुंह को पाक साफ रखेगी और रब की रजामंदी तुम्हें दिलवाएगी। नबी इस्लाम ने फरमाया मेरा दिल करता है कि मैं अपनी उम्मत के अफराद को हर नमाज के साथ मिसवाक करने का हुक्म दूं, लेकिन नहीं हुक्म दिया तो किस डर से कि मेरी उम्मत पर कहीं मुशक्कत ना हो जाए। नबी अलैहिस्सलाम ने कितने दिन तरावी की नमाज पढ़ाई है? बोले 3 दिन। चौथे दिन नहीं आए। पहले दिन आए हैं, दूसरे दिन तादाद ज्यादा हो गई, तीसरे दिन और तादाद ज्यादा हो गई, चौथे दिन नबी अलैहिस्सलाम आए ही नहीं। क्यों नहीं आए? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे इस बात का अंदेशा था, मुझे इस बात का डर था कि कहीं अल्लाह मेरी उम्मत पर इस चीज को फर्ज ही ना कर दे। इन्हों को तो 5 नमाज़ां फर्ज नहीं पढ़िया जानियां, तो 6वीं जी तरावी की नमाज है वो किवें पढ़ेंगे? नबी अलैहिस्सलाम कितने मुशफिक हैं, कितने मेहरबान हैं। जब मेराज पे गए कितनी नमाजों का तोहफा मिला था? 50 नमाजों का। वो तो अल्लाह तबारक तआला ने एक जरिया बनाना था मूसा अलैहिस्सलाम को, और क्या तेरी उम्मत ने कोई नहीं पढ़नी है। तो जी मैं अपने दिल पे हाथ रखे, जरा आप अपने अपने दिल पे हाथ रखे कि यार अब तो चलो 5 हैं, जो 50 होंगी तो फिर की बनना। आज होता यह है कि दिन छोटे होने शुरू हो गए ना, दिन छोटे होने शुरू हो गए। जोर की नमाज पढ़ के अभी 1-2 काम भी खत्म नहीं होते थे, नाल ही अल्लाहु अकबर, मतलब कि असर की अज़ान हो गई। थोड़ी देर बाद मगरिब की, थोड़ी देर बाद इशा की, तो कहने वाला मौलवियों ने बांगा तो अलावा काम भी कोई नहीं है, हाले सिर्फ 5 ने, तो जो 50 होंगी तो की अलमिया होना सी। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी उम्मत 50 नहीं पड़ेगी। चक्कर लगते गया, चक्कर लगते गया, चक्कर लगते गया, मुलाकात मूसा अलैहिस्सलाम से भी और अल्लाह से भी हम कलाम हो गए। कितनी रह गई? 5 रह गई। ये किसके गम में 5 हुई हैं? किन पर मेहरबानी हुई है, किन पर शफकत हुई है? उम्मत के लोगों पर। नबी अलैहिस्सलाम पर कोई मुशक्कत नहीं थी। आप पर 5 नहीं, आप पर 6 नमाजें फर्ज थी। एक नबी पर, यानी कि मेरे और आपके जो नबी हैं उन पर कितनी नमाजें फर्ज हैं? 6 नमाजें फर्ज हैं। छठी कौन सी है? रात का क़याम, तहज्जुद की नमाज। आका अलैहिस्सलाम ने कभी नागा नहीं किया। नबी अलैहिस्सलाम उसको फरीज़े की तरह अदा करते रहे। साढ़े 5 फर्ज ने साढ़े 2 नहीं पढ़ियां जाती। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ने हमारे ऊपर ये एहसान किया। हज़रत कुरान ने जो ऐलान किया ना, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके लिए, पूरे जहानों के लिए रहमत बना के भेजा। अल्लाह तबारक तआला हमें इस बात को समझने की तौफीक अता फरमाए और नबी अलैहिस्सलाम से जिस तरह सहाबा इकराम ने मोहब्बत की है, जिस तरह कुरान ने मोहब्बत करने का, जिस तरह अहादीस ने मोहब्बत करने का उसूल, तरीका, सलीका हमें बताया है, अल्लाह हमें वैसा तरीका सलीका अपनाने की तौफीक अता फरमाए, उस अंदाज से हमें मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह आइंदा जो मैं यहाँ से अपनी बात को आगे लेकर चलेंगे, जो बातें रहती हैं वो भी सीखेंगे। अल्लाह हमें समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।